Hello everyone. So recently, the former President of India, Ramnath Kovind, has submitted a report regarding simultaneous election or the one nation, one election. Right. So what has been in the report? What has been the recommendation? What are the benefits of implementing one nation, one election? And what are the disadvantages which may arise if one nation, one election is implemented, or what are the challenges which will be occurring if one nation, one election has to be implemented, and what should be the way forward? So let's analyze this in very detail. Right. So recently it was in news that the former president has submitted its report. Right. इससे पहले हम लोग इस रिपोर्ट पे जाएं, फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, एंड बेसिक्स में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स देखेंगे. फर्स्ट थिंग इज आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट टॉक्स अबाउट दैट जो लोकसभा है, राइट, लोकसभा में का जो टेन्योर होगा दैट विल बी ऑफ 5 ईयर. Similarly, the Article 172 of the Constitution of India, it talks about that the state legislature होंगे, उनका tenure होगा 5 year. Please remember that there is no minimum tenure which is given inside this. एक tenure दिया है कि वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकते. 5 साल तक वो एक बार बनेंगे तो 5 साल तक उनका टेन्योर होगा लोकसभा का एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का. दिस इज व्हाट आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज. सो दिस कमीशन फॉर कंसिडरिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड वन नेशन वन इलेक्शन वाज फॉर्म्ड. इसमें लाइक द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वाज देयर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज अमित शाह वाज देयर, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन of the Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad was there, former finance commission के chairman NK Singh was there, and former Lok Sabha secretary Subhash Kashyap was there, senior advocate Harish Salve was there. So all these 6-member panel was there. This 6-member commission, they have submitted a report regarding the simultaneous election. So what have been the recommendation of this commission? What have they recommended? So they have considered that simultaneous elections should be held inside the country. ठीक है, so they have accepted this. But how this will be implemented, and whether because of this simultaneous election, whether it will be unconstitutional, whether it will be violating the basic feature of the Constitution of India, right? So these kinds of questions has been asked to this commission, and they have already considered this and given in the report. So looking at this, what earlier is to happen, that for the Lok Sabha election and the state assemblies election commission of India was there, और election commission of India election conduct करवाती थी लोक सभा and the state legislative assembly की. And there was another body in every state that used to be, that was a state election commission that used to conduct election for the local level, that is panchayat level as well as the urban local governance level, right? So this was the earlier feature. Now they will be saying कि अब क्या होगा, now there will be a preparation of common electoral roll and the voter ID will be issued. और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ये कॉमन वोट इलेक्टोरल रोल्स एंड वोटर आईडी बनाएंगे, जो पहले अलग अलग होता था. इससे क्या होगा कि एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सकता है, बोथ फॉर द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द पंचायत और द अर्बन लोकल गवर्नेंस, राइट? सो साइमल्टेनियस विल बी देयर. Another constitutional article 325 is there. In this, it talks about that no person to be ineligible for inclusion in or the claims included in the special electoral roll. So basically, these are talking about the one general electoral roll. So if simultaneous election has to be held, then Article 325 of the Constitution of India, it needs an amendment, क्योंकि अब एक ही electoral roll prepare होगा as per this commission recommendation.
What other things is being recommended? So in first step, what they have said that in the first step we will be doing the simultaneous election of Lok Sabha as well as the state legislative assembly. So means लोक सभा का प्लस देश में जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं इन सब का इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा. आफ्टर दैट विद इन 100 days ऑल द लोकल बॉडीज इलेक्शन विल ऑल्सो बी सिंक्रोनाइज्ड, ताकि उसके बाद से जो इलेक्शन होगा, राइट, सो ऑल इलेक्शन एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल दे विल बी कंडक्टेड ऑल टुगेदर, राइट. एक साथ ही वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे दिया जाएगा वोटर्स को और बोलेगा कि आपको इन 3 जगह पे आपको वोटिंग करनी है, और जिसमें आप सेंटर में ये है, स्टेट पे ये है और लोकल लेवल पे है, आप जहां पे जिसको वोट करना चाहते हैं उसको आप वोट कर सकते हैं. सो दैट विल बी देयर. नाउ बिग क्वेश्चन अराइजेस कि 5 साल के लिए होता तो है इलेक्शन, बट मेनी ए टाइम्स हंग असेंबली इज बीइंग फॉर्म्ड. बहुत बार कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होता किसी पर्टिकुलर पार्टी का, और ये हो सकता है दैट इट मे हैपन इन द लोकसभा इलेक्शन, इट मे हैपन इन द लाइक इन एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? व्हाट इफ हंग असेंबली टाइप सिचुएशन विल अकर, राइट. सो दिस कमीशन टॉक्स अबाउट दैट फर्स्ट वी विल देयर इज नीड टू हैव द सॉल्यूशन, and that solution taken from the Sarkaria Commission recommendation. Sarkaria Commission recommendation says that during the hung assembly, जिस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? इन 4 चीज को पहले देखना चाहिए कि क्या कोई कोलिशन गवर्नमेंट कोलिशन बनना है. इलेक्शन से पहले कोई कोलिशन, अगर अलग अलग पार्टी जो है वो कोलिशन बनाए हो तो उनसे पूछा जाए कि क्या आप लोग मीन्स सरकार बनाने के कैपेबल होगी या नहीं हो. वो नहीं वर्कआउट होता है, देन इनवाइट द लार्जेस्ट पार्टी. लार्जेस्ट पार्टी मीन्स जिनके पास सबसे ज्यादा वोट, मीन्स जिनके पास सबसे ज्यादा सीट हो उनको मीन्स इनवाइट किया जाए, एंड दैट पार्टी विल बी क्लेमिंग टू फॉर्म द मीन्स गवर्नमेंट. ठीक है, ऑब्वियसली फ्लोर टेस्ट होगा, अगर वो फ्लोर टेस्ट में पास कर जाएंगे तभी जाके वो बन पाएगा. देन पोस्ट इलेक्शन कोलिशन पार्टीज, इलेक्शन के बाद भी कोलिशन बनता है एज पर द सीट्स विच दे हैव गॉट, एंड इफ इट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग देन द पोस्ट इलेक्शन कोलिशन, जिसमें एक्सटर्नल सपोर्ट दिया जाता है, सपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड दिया जाता है, जिसमें लाइक कुछ स्मॉल पार्टीज होते हैं जो आउटसाइड सपोर्ट दे सकते हैं. सो these kinds of 4 kinds of scenarios को means खोजा जाएगा, and if any of these get successful तो वो हंग असेंबली का सॉल्यूशन मिल सकता है. बट हो सकता है कि इतना करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिले. व्हाट विल हैपन इन दैट केस, है ना? तो क्या 5 साल में, फॉर एग्जाम्पल अगर 2029 में कोई इलेक्शन होता है ना, लोकसभा का इलेक्शन हुआ एंड बाकी सारे स्टेट्स का भी इलेक्शन हुआ, अब उसमें से मान लो कि 5 स्टेट्स का जो है कहीं पे 1 साल के बाद सरकार गिर गई, कहीं पे 2 साल के बाद सरकार गिर गई, तो फिर क्या होगा? पूरे देश में फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा या उन 5 स्टेट्स में ही करवाया जाएगा? क्या होगा, क्या होगी सिनेरियो? और फिर जो नया सरकार बनेगा वो कितने दिन के लिए बनेगा? अगर वो 5 साल के लिए बनेगा, फिर से 2 साल के बाद सरकार मान लो गिर गई, 2029 में स्टार्ट हुआ, 2 साल के बाद 2031 में गिर गई सरकार, तो ये नया सरकार अगर बनाएगी 2036 तक बनेगा, एंड नेक्स्ट इलेक्शन इज गोइंग टू बी साइमल्टेनियस इलेक्शन टू बी शेड्यूल्ड इन 2034, तो ये अलग प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट. तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सो दिस कमीशन सेड दैट जहां जहां भी सरकार गिरेगी मिड टर्म में, so new election can be conducted, fresh election can be conducted, but that fresh election will be there only for the remaining period of those 5 years. For example, let's say in Rajasthan, if in Rajasthan सरकार गिर जाती है 2031 में, तो राजस्थान में जो नया सरकार बनेगा वो सिर्फ 3 साल के लिए बनेगा, ताकि 2034 में पूरे देश में फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाया जा सके.
राइट। लेकिन आपको पता हो कि अभी तो क्या है, आर्टिकल 82 में एंड आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 के अंदर अभी क्या लिखा है कि इट शुड बी, जो नया सरकार बनेगा वो बनेगा कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, राइट। सो दैट विल बी वायलेटेड, आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 विल बी वायलेटेड। Therefore, Article 83 and Article 172 of the Constitution of India has to be amended। और ये जो 5 साल की जो सरकार बन रही है, इसको मिस लैंग्वेज चेंज करके बोला जाएगा कि मैक्सिमम पीरियड जो होगा वो 5 साल का होगा और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, राइट, क्योंकि रिमेनिंग पीरियड के लिए हो सकता है। पंचायत में अगर आप देखोगे तो यही वाला चीज अभी भी फॉलो किया जाता है। Panchayats election, they are also being conducted for the 5 years, but if सरकार गिर जाती है within the 5 before that 5 years only, तो remaining period के लिए नया पंचायत बनता है। So that is already happening. Now several types of questions has been there and the commission has also tried to answer those questions. For example, whether this is unconstitutional, whether having the simultaneous election or the one nation one election is unconstitutional in nature, whether it is violating the basic feature of the Constitution of India. So what this commission has to say on this? The commission says that the Article 83 and Article 172 of the Constitution, it does not define the minimum number of years, है ना, it does not define कि कम से कम कितना साल सरकार चलना चाहिए। So simultaneous election इसको वायलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 2029 में या जब से भी ये साइमल्टेनियस इलेक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एनी स्टेट, कोई स्टेट, कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं जहां पे 1 साल सरकार चली हो, कुछ स्टेट ऐसा हो सकता है जहां पे 2 साल सरकार चली हो, कोई स्टेट ऐसा हो सकता है जहां पे 3 साल सरकार चली हो, कोई हो सकता है जहां पे 4 साल चला हो, राइट। तो इन सब सारे स्टेट्स के वापस से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा टू कंडक्ट द साइमल्टेनियस इलेक्शन। सो एज देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स is given inside the Article 83 and Article 172 of the Constitution of India, so it will not be violated if simultaneous election is being conducted, right? So that is there. Plus question is whether it will violate the basic structure of the Constitution of India or not, whether it will violate the basic feature of the Constitution of India or not. So the basic structure doctrine, whatever it talks about the rule of law, it talks about the protection, golden triangle between the Article 14, 19 and 21, right? So none of these will be violated if simultaneous election or the one nation one election is being conducted. So it will not be violating any of the basic feature of the Constitution of India. This is what the commission has said in its report. Another thing which is in question, that whether it will be against the democratic principles, right? So the commission has the answer to this also. The commission says that this is to ensure the best utilization of time and resource. जो लोगों का पैसा है, जो जनता का पैसा है, जो लोगों का टाइम है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए है, क्योंकि बार बार लोग इलेक्शन में फंसे रह जाते हैं। उस चीज को खत्म करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन की चीज को लाया जा रहा है। सो रेदर देन eliminating the democracy, it will be promoting more democracy. This is what the commission has to say. So commission is saying that because of the multiple elections, जो लोकसभा के इलेक्शन है प्लस स्टेट असेंबली के इलेक्शन है, सो बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी पैरालिसिस हैपेंस, बिकॉज इलेक्शन के टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। सो रेदर देन दिस, इफ यू आर हैविंग अ साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो एक टाइम पीरियड होगा 3-4 महीने का, वो उस टाइम पे बस हैम्पर होगा पॉलिसी लेना, बाकी 5 साल जो है वो अच्छे से पॉलिसी लिया जा सकता है। सो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस, सो बेटर गवर्नेंस कैन बी इंश्योर्ड। Plus, it does not stop someone from the voting or participation. Means the thing is कि simultaneous election हो तो रहा है, one nation one election हो तो रहा है, किसी को वोटर लिस्ट से निकाल तो नहीं रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया तो जा ही रहा है। So how it will be violating the principles of democracy, right? So as per the commission's recommendation, it is not violating the democratic principles.
Another thing which is in question, that is, will it violate the federalism? तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है, विल इट बी वायलेटेड? तो सेंटर का डोमेन है, जो स्टेट का डोमेन है, विल इट बी वायलेटेड if one nation one election is being conducted? So the commission has said that actually elections are related. There are two articles. आर्टिकल 327 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि दे कैन मेक सम प्रोविजंस रिगार्डिंग election of legislature, that is for the parliament as well as the state legislature. Similarly, article 328 में it is the power of the state legislature that they can make some of the provisions with respect to the election to the state legislatures, right? So the commission has said that there is no need to amend article 327 or article 328. So we are not changing anything from this. And for conducting the simultaneous election, there is no need, exactly no need to change the article 327 or article 328. तो जो पावर है स्टेट्स का वो इंटैक्ट रहेगा रिगार्डिंग द इलेक्शन, राइट? सो साइमल्टेनियस इलेक्शन विल नॉट बी वायलेटिंग these articles, so it will not be violating the federal features, right? This is what the commission has to say. Now let's analyze whether this simultaneous election, whether it will be beneficial or whether it will be a disaster, right? And if it has to be implemented, how it has to be implemented, what should be the measures which has to be followed. So first thing is, it will reduce, what are the arguments in favor of having simultaneous election or the one nation one election? It will reduce the government distraction. इलेक्शन के कारण गवर्नमेंट डिस्ट्रैक्ट होती है, बार बार इलेक्शन के प्रोसेस में कंडक्ट कराना होता है. प्राइम मिनिस्टर्स, स्टार कैंपेनर्स जो होते हैं, लाइक द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे हैव टू गो टू डिफरेंट मींस स्टेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन. तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है. ये सब चीज खत्म होगा 5 साल में एक बार ये सब सारा कुछ किया जाएगा. देन it will reduce the impact of model code of conduct. आपको पता है that model code of conduct is implemented जब से इलेक्शन डेट अनाउंस होता है एंड जब तक इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तब तक, राइट? इन दिस पीरियड नो एनी सिग्निफिकेंट थिंग कैन बी ब्रॉट आउट बाय द गवर्नमेंट, राइट? तो बार बार अगर इलेक्शन होता है तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है एंड फिर बार बार वो 3-4 महीने का टाइम जो है वो डिस्टर्ब होता है. So if simultaneous election will be there, only once in 5 years model code of conduct will be applied, and therefore it will save the time, it will have a better governance in the country. Plus it will be cost saving. अगर election is a very expensive effort, right? बहुत ज़्यादा effort लगता है all the machinery को, right? So it will be a cost saving, not only for the political parties, not only for the institutions which he will be involved inside the in conducting election. क्योंकि बार बार इलेक्शन होता है, कभी 5 स्टेट में हुआ, फिर उस अगले 5 स्टेट में हुआ, अगले 3 स्टेट में हुआ, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है देश का, तो ये पैसा भी बचेगा. प्लस इट विल बी सिटीजन्स कन्वीनियंस. सिटीजन को बार बार इलेक्शन, कभी पंचायत इलेक्शन में वोट देने जाना पड़ता है, कभी लाइक स्टेट असेंबली के इलेक्शन में वोट देने जाना पड़ता है, कभी लोकसभा के इलेक्शन में वोट देने जाना पड़ता है. सो दिस कन्वीनियंस, इट विल हैव ए बेटर कन्वीनियंस. एक बार आप जाओगे और तीनों जगह के पंचायत के लिए एज वेल एज द स्टेट असेंबली के लिए एज वेल एज द सेंटर के लिए आप वोट देके आ जाओगे. सो इट विल हैव ए बेटर कन्वीनियंस फॉर सिटीजन्स. प्लस इट में ऑल्सो कर्ब द हॉर्स ट्रेडिंग. हॉर्स ट्रेडिंग होता है कि ये जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इनका खरीद बिक्री वगैरह जो है, ये जो कंसेप्ट है, सो दैट इज हॉर्स ट्रेडिंग. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, एक फिक्स डेट पे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे और उसका रिजल्ट होगा. तो बहुत कम टाइम होगा जब सरकार बनाया जाए, राइट? तो उस टाइम पे ये हॉर्स ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा. मीन्स दिस इज व्हाट बीइंग एक्सपेक्टेड. अब कितना ज्यादा इंप्लीमेंट होगा, कितना अच्छा से होगा, सो वो तो जब इंप्लीमेंट होगा तब पता चलेगा. Now what are the arguments in favor of simultaneous election? Why so many parties, and most importantly the local parties, why they are in against of one nation one election or the simultaneous election? So what are the arguments in against of one nation one election? Right, before we go into the arguments,
Let's first see few of the examples, because India already had this simultaneous election till 1967, और 1967 के बाद कुछ स्टेट्स में जो है वो सरकार गिर जाती है, वहां से चीजें चेंज हो जाता है, वहां से साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो पाता। प्लस अदर कंट्रीज लाइक द साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन, यहाँ पे भी साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है। प्लस द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 22nd Law Commission of India, it has also recommended that the simultaneous election should be held, and it should be held from the general election of 2029. Right, so this has been there. Now let's come to the argument against the one nation one election, that is simultaneous election. First thing कि पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, इतना बड़ा इलेक्शन, राइट, लोकसभा का इलेक्शन प्लस स्टेट, ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन प्लस पंचायत का इलेक्शन, दिस विल हैव लॉट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ईवीएम, लॉट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पुलिस पर्सनल्स, राइट, आईटीबीपी पर्सनल्स एंड अदर जो सीआरपीएफ के जो पर्सनल है, इन सब का भी रिक्वायरमेंट होगा। बहुत सारे जो है इलेक्शन मशीनरी होंगे, लगेंगे, है ना, एक साथ कंडक्ट करवाने में। इट विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, सो लॉट्स ऑफ लॉजिस्टिक चैलेंज विल बी कमिंग अप if simultaneous election has to be held. Plus it is believed कि वोटर चाहेगा, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, 3 वोटिंग मशीन रखा है, तो दिस इज नॉर्मल कि वोटर्स मे गेट कंफ्यूज, और वो चाहेंगे कि ठीक है एक ही पार्टी को सब जगह वोट कर दिया, राइट, एक ही सिंबल को सब जगह वोट कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा कि नेशनल पार्टी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बट द लोकल पार्टी विल बी लूजिंग इन इलेक्शन, राइट, इवन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इवन इन द पंचायत, एट द पंचायत लेवल और द अर्बन लोकल गवर्नेंस, देयर इज हाई टेंडेंसी दैट पीपल विल बी वोटिंग टू द नेशनल पार्टी ओनली। तो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे विल बी एट द डिसएडवांटेज पोजिशन because of simultaneous election, and this is the reason why they are rejecting simultaneous election and they are going against. अभी भी इलेक्शन तो कंडक्ट करवाए जाना रहे हैं, may have to conduct in between। अभी भी अगर मिड टर्म है ना, मिड टर्म कोई सरकार गिर जा रही है, तो भी क्या है कि रिमेनिंग पीरियड के लिए इलेक्शन तो कंडक्ट करवा ही जाएगा, है ना। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का क्या मतलब रह गया? मान लो कि 5 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में जो है वो अगले साल गिर गया सरकार, फिर उसके बाद अगले साल गिर गया, तो फिर कंटिन्यूअस इलेक्शन तो होगा ही होगा, बस ये होगा कि रिमेनिंग पीरियड ऑफ टर्म के लिए होगा, राइट। तो स्टिल इलेक्शन मे बी हैव टू बी कंडक्टेड एवरी ईयर, दैट इज ऑल्सो ए थिंग। प्लस देयर विल बी हेवी बर्डन ऑन द इलेक्शन कमीशन, राइट, टू कंडक्ट इवन लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली इज वेरी कम्बरसम टास्क फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड प्लस लोकसभा के इलेक्शन के साथ प्लस ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल पंचायत्स, इन सब का इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इट विल वेरी कम्बरसम टास्क फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्लस इट मे हैम्पर द फेडरलिज्म ऑल्सो। हाउ? नाउ लेट सपोज कि 4 साल सरकार चली किसी स्टेट में, सब जगह पे साइमल्टेनियस इलेक्शन स्टार्ट हो गया, किसी स्टेट में 4 साल सरकार चली, अब उस स्टेट में वो सरकार गिर गया, राइट। तो 1 साल के लिए अब चाहेंगे ये लोग कि इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाते हैं, 1 साल प्रेसिडेंट रूल में उस स्टेट को रख दो, राइट। इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर 1 ईयर, इवन द पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट बी विलिंग टू कंडक्ट इलेक्शन, बिकॉज वो 1 साल के लिए ही अगर आएगी वापस से वो फ्रेश इलेक्शन में जीतेगी तो सिर्फ 1 साल के लिए जीतेगी, है ना। तो इवन दे विल नॉट बी विलिंग टू हैव दिस इलेक्शन। तो ये बहुत बार क्या होगा कि 1 साल 1.5 साल अगर बचा है साइमल्टेनियस इलेक्शन में, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल रख सकता है, और बहुत सारे स्टेट में साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इस लूप होल आर्टिकल 356 को यूज किया जा सकता है, राइट। सो ऑब्वियसली दैट विल बी हैम्परिंग द फेडरलिज्म ऑफ द कंट्री, राइट। प्लस इट में रिड्यूस द अकाउंटेबिलिटी। हमारे देश के अंदर क्या है सिचुएशन, दैट वंस इन 5 ईयर दिस political persons, political executives, they reach to the people, right। बार बार अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसके कारण इनको बार बार ग्राउंड पे जाना पड़ रहा है, एटलीस्ट उनसे बात करनी पड़ रही है। दो दिस इज नॉट ए गुड लॉजिक, राइट, बट स्टिल
they are being made accountable if multiple times election comes up, then multiple time they are made accountable. नहीं तो वो एक बार सरकार बन जाती है तो वो 5 साल के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते तक नहीं है. अगर बार बार इलेक्शन होता है तो बार बार उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना पड़ता है, लोगों की बात सुननी पड़ती है, उनको उनके फेवर में बात करना पड़ता है, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस लाने पड़ते हैं, राइट. इवन द प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू गो, अभी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है अलग अलग स्टेट्स में, जहां जहां इलेक्शन होता है वहां पे अलग अलग प्रोविजंस लाने पड़ते हैं. तो दिस इज हैविंग सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी. बट अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा तो सिर्फ 5 साल में एक बार ही अकाउंटेबल किया जा सकता है सरकार को, राइट. सो दीज आर द आर्गुमेंट अगेंस्ट. सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, वेदर द साइमल्टेनियस इलेक्शन इज बैड? So obviously it is not bad, right? Because we have seen that lots of benefits are there. So what should be the solution for this? What should be the way forward? The way forward is do not implement in haste. आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, right? उसके बाद ही आप implement करो, right? Logistically you should be accurate. You should know how much means EVM you will be requiring. You should know how much personals you will be requiring. Only if you have all these facilities, then only you should go for the simultaneous election. जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, right? We are known for our democracy. We are known for the free and fair election since 1952. उस चीज को अब बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है for the simultaneous election. Plus create awareness to the voters. वोटर्स को बताओ कि ये 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपको दिया जाएगा, ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, ये पंचायत वाला है, अब सब में अलग अलग आप वोट कर सकते हो. तो वोटर्स अवेयरनेस शुड बी देयर फर्स्ट, राइट. इन स्टेट की बहुत फास्ट तरीके से आप काम करवा लो. यू शुड बिल्ड कंसेंसस. बहुत सारे जो स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर इन अगेंस्ट ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन. सो फर्स्ट हैव ए कंसेंसस बिल्डिंग अमंग देम. फर्स्ट हैव द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अमंग देम, राइट. Then only you can bring this simultaneous election. Plus whatever the constitutional amendment is required, for example Article 83, Article 172, so these kinds of constitutional amendment has to be required. So proper constitutional amendments with proper discussion should be held inside the parliament. Once this gets done, then only simultaneous elections should be conducted. Plus invest in the infrastructure. You have to conduct the free and fair election even today, right? So if you are able to conduct the free and fair election, our democracy will be intact. So for that you need lots of infrastructure, right? Only if you are able to arrange all those infrastructure, then go for the simultaneous election, right? So these we have understood each and everything about the simultaneous election. What do you feel about this? Whether India should adopt for the simultaneous election or not? Please comment in the comment box. We will be continuing this series and आगे के discussion हम लोग करते रहेंगे. Stay tuned. Thank you very much.